वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दलजीत दोसांझ अमेरिका और अमेरिका के अंदर जो जिमी फैल्कन है इनके बारे में खबर बताता हूं। ये सरदार साहब क्या कहते हैं, आप इनकी भी बात सुन लो जरा। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਖੂਨ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਖੂਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚਮਚਾਗਰੀ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 750 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਡੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਮਗੇ ਲਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਸੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਸਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ RSS ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਨਾ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਗੋਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਢਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਢਟਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਘਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਓਏ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਘਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਿਆਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ भी तुहाडे चो गैरतमंद खून खत्म हो गया, तुहाडे सिर्फ चमचागिरी का खून रह गया। इन्होंने भी सीधी बात कर दी कि देखो आप लोग पंजाब के जो लोग हैं जिस प्रकार से बीजेपी को सपोर्ट करते जा रहे हैं, तो ये बीजेपी पंजाब के लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय के अंदर बनने वाली है। अमृतपाल सिंह खालसा की बात करें तो जो अमृतपाल सिंह खालसा है वो तकरीबन आज से 4 से 5 महीनों के बाद आप उनको पंजाब के अंदर देख सकते हैं। पंजाब के अंदर आपको इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी अमृतपाल सिंह खालसा दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर साल 2027 के अंदर इलेक्शन है और 2027 के इलेक्शन के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा पंजाब के अंदर एक नामचीन चेहरा है। अमृतपाल सिंह खालसा के बाद अब बात करते हैं पंजाब की और पंजाब की हालत की। जिस प्रकार से पंजाब सरकार के द्वारा लाला केजरीवाल के द्वारा राज्यसभा की सीटें बेची गई, इसी प्रकार से MLA की भी सीटें बेची गई थी। लेकिन राज्यसभा की सीट के बारे में हरभजन सिंह के द्वारा आज सुबह एक ट्वीट किया गया, उसके अंदर वो लिखते हैं, समय आने के ऊपर आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा और मैं आपके किसी लीडर को गाली नहीं दी, अपनी जुबान क्यों गंदी करूं मैं। और मुझे गद्दार कहने वालों, पहले अपने लोगों से पूछो पंजाब की राज्यसभा सीट कितने में बेची थी। अगर ना बताए तो मैं आपको बताऊंगा किसको कितना चढ़ाया गया था और किसकी तरफ से चढ़ाया गया था और कैसे किसको मंत्री संतरी बनाया गया था पंजाब को लूटने के लिए और लाला को माल पहुंचाने के लिए। पंजाब को लूट कर खा गए। हरभजन सिंह आज लाला केजरीवाल को भगवंत मान को और पंजाब सरकार के बारे में ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हैं कि राज्यसभा की जो सीट है वो बेची गई थी। अब पंजाब की सरकार जो है
है इसकी जांच कैसे होगी। अब आज की तारीख के अंदर जो भाजपा है वो पंजाब की सरकार गिराने की भी कोशिश कर रही है। साल 2027 के अंदर भाजपा फिर से पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने के बारे में सोच रही है। ऐसे के अंदर हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, ये सारे आदमी बीजेपी को जाकर ज्वाइन कर चुके हैं। पहले इन लोगों ने पंजाब की तरफ से पंजाब की बात रखने के लिए राज्यसभा की सीटें आम आदमी पार्टी की तरफ से खरीदी थी। अब ये भाजपा से शायद खरीद चुके होंगे या भाजपा के अंदर हो सकता है ऐसे ही चले गए हो या भाजपा ने इनको कोई और भी लालच दिया हो सकता है। लेकिन जो लोग आम आदमी पार्टी से पैसा लेकर जिन्होंने सीटें खरीदी होंगी, भले ही लाला केजरीवाल का इसके अंदर दोष है, लाला केजरीवाल के ऊपर या भगवंत मान के ऊपर आरोप लगते हैं कि पंजाब की इन पार्टियों ने सीटें पैसे देकर बेची हैं। सामने वाले लीडर वो कितने ईमानदार होंगे जिन्होंने पैसे देकर ये चीजें खरीदी है। वो सामने वाले लीडर चाहे हरभजन सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे बाकी के और राज्यसभा मेंबर हो, वो भी सारे के सारे लालची थे। और पंजाब के अंदर लाला केजरीवाल की सरकार भी लालची है। इस पोस्ट से, इस ट्वीट से हमको ये देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दलजीत दोसांझ की। अभी आपको आज की दूसरी सबसे बड़ी अपडेट बताते हैं जो अमेरिका से सामने आती है। अमेरिका के अंदर दलजीत दोसांझ, जिमी फैलन और इसके अलावा एनबीसी टीवी मंच के ऊपर एक मुकदमा दायर किया गया जो सरदार मोहिंदर सिंह के द्वारा किया गया। सरदार मोहिंदर सिंह ने दलजीत दोसांझ, एनबीसी टीवी और जिमी फैलन के ऊपर यह मुकदमा दर्ज क्यों करवाया है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। क्योंकि सरदार मोहिंदर सिंह के द्वारा इस पोस्ट को साझा करके बताया गया कि उन्होंने दलजीत दोसांझ के ऊपर यह मुकदमा क्यों दायर करवाया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दलजीत दोसांझ को अमेरिकी अदालत के द्वारा नोटिस भेजा गया था। वो नोटिस दलजीत दोसांझ को रिसीव हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर दलजीत दोसांझ के ऊपर $11,000 का जुर्माना लगाया गया है। ये एक छोटा सा जुर्माना है अगर वो अपना 15 दिनों के अंदर अंदर जवाब नहीं देते। इसके अलावा अब सरदार मोहिंदर सिंह कहते हैं कि साल 1984 के अंदर दलजीत दोसांझ ने जिस अमिताभ बच्चन के पैरों को केबीसी शो के ऊपर जाकर छुआ था, उसी अमिताभ बच्चन ने साल 1984 के अंदर एक नारा बोला था, खून का बदला खून। जब ये नारा भीड़ ने सुना, जो हिंदुओं की गुंडई भीड़ थी, गुंडों की जो भीड़ थी, हिंदू धर्म के भेष के अंदर आकर उन्होंने बहुत सारे सिखों का खून बहाया था। तो सरदार मोहिंदर सिंह ने कहा कि ये जो हिंदू गुंडों की भीड़ थी, साल 1984 के अंदर इसी भीड़ ने इनके पिता को मौत के घाट उतार दिया था। सरदार मोहिंदर सिंह जी ने दलजीत दोसांझ से यह सवाल रखा है कि अगर अमिताभ बच्चन ने उस समय वो नारा बोला था, अगर वो नारा बोलने के कारण दलजीत दोसांझ के पिता को इसी प्रकार से साल 1984 के अंदर उसी भीड़ के कारण मौत के घाट उतार जाता, तो क्या दलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के पैर छूते? नहीं ना। तो यहां पर इन्होंने इसका यही हवाला देते हुए कहा कि मेरे पिता की मौत उसी भीड़ के कारण हुई थी, उसी भीड़ ने मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया था साल 1984 के अंदर। अब यहां पर दलजीत दोसांझ से दूसरा सवाल किया है सरदार मोहिंदर सिंह जी ने कि अगर तुम्हारे घर की बहू, बेटी या किसी माता का बलात्कार और उसको बाद में मौत के घाट उतार दिया जाता उसी भीड़ के द्वारा, तो क्या तुम इसी अमिताभ बच्चन के पैरों को छूते और जाकर उसके अमिताभ बच्चन के पैरों में तुम गिर जाते? तो यहां पर भी सरदार मोहिंदर सिंह जी ने दो सवाल पूछे हैं दलजीत दोसांझ से। और सरदार मोहिंदर सिंह जी ने कहा कि ये दोनों चीजें मेरे परिवार के साथ घटी हैं, मेरे पास इन चीजों के सबूत है कि साल 1984 के अंदर अमिताभ बच्चन ने जो डायलॉग बोले हैं, उसके उस डायलॉग बोलने के कारण जो भीड़ है, भीड़ ने उग्र रूप अपनाया है। उग्र रूप अपनाने के बाद फिर उसी कायरों की भीड़ ने घरों के अंदर घुसकर सिखों और बहु बेटियों को मारा और उनकी इज्जत लूटी। यह था दलजीत दोसांझ का किस्सा। अब दलजीत दोसांझ बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर अमेरिका के अंदर घिर चुके हैं। अब आपको तीसरी बड़ी अपडेट बताते हैं जो हमारी तमिलनाडु के साथ जुड़ी हुई है। तमिलनाडु के बारे में आप सभी को पता है, जब से जो तमिलनाडु के अंदर विजय सीएम बने हैं, तो विजय ने सीएम बनते ही बहुत सारे ऐलान किए हैं। सबसे पहला ऐलान तो उन्होंने किया था 5 किलोमीटर तक किसी भी धार्मिक स्थान के स्कूल, कॉलेज, इन चीजों के कहीं पर भी हमको ठेका दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन अब इसके अलावा इन्होंने दूसरा बड़ा ऐलान कर दिया कि जितने भी हमारे सरकारी अफसर हैं, चाहे वो बड़े पद के अफसर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, या वहां पर एमएलए है, एमपी है, इन सब के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा फैसला इन्होंने एक और सुनाया है। इन्होंने कहा है, सीएम विजय ने कहा है कि हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी एमपी, एमएलए हैं, बड़े अफसर हैं, सरकारी अफसर, ये सारे के सारे सरकारी अस्पताल के अंदर जाएंगे, वहां पर जाकर अपना इलाज कराएंगे। अगर कोई वहां पर जाकर इलाज नहीं करवाता और कोई भी मंत्री या बड़ा अफसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाता, तो उन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है, जो इन्होंने रिश्वत को लेकर ऐलान किया है। सीएम विजय
विजय थलपति का सबसे बड़ा ऐलान यही यहां पर माना जाता है। सीएम विजय ने कहा है कि यदि आपसे कोई 1000 रुपए की भी रिश्वत मांगता है तो आप उस 1000 रुपए की रिश्वत आपको नहीं देनी है, आपने केवल मुझे फोन करके एक कंप्लेंट करनी है। अगर आप मुझे कंप्लेंट करते हैं तो आपको एक कंप्लेंट करने के बदले 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। आपसे सबूत नहीं पूछे जाएंगे, आपको सीधी वहां पर इनामी राशि दी जाएगी। 1000 रुपए की रिश्वत मांगने के खिलाफ आपको वहां पर 1 लाख रुपए की इनामी राशि मिलेगी। जिस प्रकार से हमको तमिलनाडु के अंदर खालसा राज वाली वो सारी चीजें दिखाई देती हैं कि जहां पर एक मंत्री का बच्चा पड़ेगा वहीं एक गरीब का बच्चा पड़ेगा, जहां पर एक मंत्री इलाज करवाएगा वहीं पर एक गरीब व्यक्ति भी इलाज करवाएगा। इसी प्रकार से वहां पर सड़कों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको खालसा राज ऐसी दिखाई देती है कि हमारा एक ईमानदार लीडर हो, ईमानदार लीडर पूरी सत्ता को बदल सकता है। जिस प्रकार से आज सीएम विजय काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम उम्मीद करेंगे पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा आएंगे और पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा को सीएम बनाया जाएगा और सीएम बनने के बाद अमृतपाल सिंह खालसा भी पंजाब के अंदर इसी प्रकार से पंजाब के लोगों का भला करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वीडियो बनाने के अंदर काफी ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए हमारे वीडियो को आगे सभी के साथ शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते तो यहाँ पर हमने व्हाट्सएप वाला नंबर दिया है। कल सरदार कुलवंत सिंह जी ने ये वाला QR कोड स्कैन करके हमारे चैनल को सहायता भेजी थी, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।